فرزند کی خبر لو. کیا ہوا ہے بن حریث؟ یہ کیسا شور ہے؟ یا امیر، یا امیر، یہ ان کوفہ والوں کا شور ہے جو حسین کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہیں. حسین کوفہ پہنچ گئے ہیں، اس وقت دارالحکومت کی طرف آ رہے ہیں. محل کا دروازہ بند کر دو. کسی بھی قیمت پر حسین کو دارالحکومت میں داخل نہیں ہونا چاہیے. کس طرح سے دوسرا رخ نظر آ رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ حسین عراق کی حکومت سے بہت زیادہ بے فکر نہیں تھے. دروازہ کھولو. دروازہ کیوں نہیں کھولتے؟ دروازہ کس کے لیے کھولا جائے؟ جیسا کہ معلوم ہے کہ حسین ابن علی آپ نقاب پوش سواروں میں سے کوئی ایک ہے، تو میری نصیحت کان کھول کر سن لے کہ عراق کی حکومت اس بدتمیز اور بغیر تربیت کے گھوڑے کی طرح ہے جو اپنے اوپر سوار ہونے والے کو گرا کر اسے مار مار کر اس کا بھوسا بنا دیتا ہے. آپ کا منہ کیوں کھلا رہ گیا؟ کیا میرے سینگ ہیں یا دم؟ نہیں نہیں، میری حیرانگی کی وجہ امیر کی تدبیر ہے جو حسین کے لباس میں کوفے میں داخل ہوئے ہیں. اور مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ میں حسین کے علاوہ کسی بھی اور کے لباس میں کوفہ آتا تو میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہوتے. آخر یہ کیسی حکومت ہے نعمان؟ پورا کوفہ حسین کا طالب ہے. میرے خیال سے خلیفۃ المسلمین یزید ابن معاویہ ہے نا؟ جو کچھ آپ نے ان کوفیوں سے دیکھا وہ ایک بچکانہ کھیل تھا. اگر آپ تالی بجائیں تو صفحہ پھر پلٹ جائے. تعجب ہے، تو وہ تالی آپ نے کیوں نہیں بجائی؟ میں اگر تالی بجانے والا ہوتا تو حاکم کوفہ رہتا. مسلم ابن عقیل کے چاہنے والوں کا شور شرابہ کیسا ہے تمہاری نظر میں؟ کیا وہ بھی کوئی بچکانہ کھیل ہے؟ کوفے میں شیعہ عقلیت میں ہے. جب تک یہ لوگ عقلیت میں ہیں خطرناک نہیں ہے. یہ حکومت کرنے کا انداز کس پاگل مفکر کا تجزیہ ہے؟ ہاں، میں نے حکومت کرنے کا یہ طریقہ گزر جانے والے خلیفہ سے سیکھا ہے. معاویہ مر چکا ہے. مر چکا ہے؟ ہاں، جیسا کہ نظر آ رہا ہے اس کا طرز حکومت بھی اسی کے ساتھ دفن ہو چکا ہے. تمہیں مسلم بن عقیل کے ارادوں کی خبر تھی اور خلیفہ کے کہنے کے مطابق اس کو اور اس کے ساتھیوں کو تم نے آزادی کا موقع فراہم کیا ہے. اس بے توجہی کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلط میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے اور فی الحال آپ اس پر سوار ہیں. خلیفہ نوجوان ہے اور ہم جیسے بوڑھوں کو پسند نہیں کرتا، اور پھر آپ نوجوان لوگ خلیفہ کی زیادہ مدد کر سکتے ہیں. ہاں، بہت خوب بڈھے سیاستدان. مسلم کہاں ہے؟ میں نے سنا ہے کہ کوفے کے اطراف کے قبیلوں سے بیعت طلب کرنے کے لیے کوفہ سے باہر نکلا ہے. سنا ہے اس نے. تم کوفے کے حاکم تھے،
तुम्हें देखना चाहिए था। इसी वजह से कूफे की हुकूमत आपके हवाले कर रहा हूँ। मैं सुनता हूँ और आप देखने पर कुदरत रखते हैं। वाकई मजाक तो नहीं कर रहे आप? बिल्कुल नहीं, ये बात मेरा दिल जानता है। और फिर जो आप हुसैन के लिबास में कूफे में दाखिल हुए हैं, यही आपकी अक्लमंदी और होशियारी की बहुत बड़ी दलील है। कूफा हमेशा से रिंद लोगों के आगे झुका रहा है और बेशक आपकी सियासत इंतहाई रश्कावर है। मैं बेजा तारीफ और खुशामद को पसंद नहीं करता नोमान। मुझे शक नहीं है कि तुम खलीफा के वफादार हो, मगर कूफा के बिल्कुल उल्टे हालात नादानियों का सबब है। मुझे कूफा पर मुसल्लत होने के लिए बावसूख खबरें चाहिए। महल में रहिएगा, मुझे मुशीर की जरूरत है। जा सकते हैं। आपसे मशवरा करने के लिए मेरी जबान बेकार है। आपको मुझ जैसे शख्स से मशवरे करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी तुम नहीं चाहते कि जो बकवास माहौल तुमने बना रखा है इसकी तलाफी में मेरी मदद करो? ये नहीं कि मैं नहीं चाहता, बल्कि नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक बेहुदा मुशीर से मशवरा लेना सिर्फ वक्त जाया करना और बेहूदगी है। एक मासूल हाकिम होना मेरी नजर में ज्यादा इज्जतदार रास्ता है बनिस्बत ये कि एक बेकार हाकिम रहूं। मैंने चाहा कि तुम्हारे हक में लुत्फ करम कर दूं। तुम्हारा जुर्म सिर्फ नादानी नहीं है, तुम पर साजिश करने वालों की मदद करने का इल्जाम है। मुस्लिम तुम्हारे दामाद के घर आया और तुमने मुख्तार सक़फ़ी से रिश्तेदारी की बिना पर उन बैत तोड़ने वालों से जानबूझकर चश्मपोशी इख्तियार कर ली। तो फिर कुछ देखा? नहीं। फिर बागियों ने भी वो सब कुछ किया जो उनका दिल चाहा। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, हाथ कट जाएं अबू लहब के जो रसूलुल्लाह का चाचा था, और वो इस बात का खुला सबूत बन गया कि कोई भी खूनी रिश्तेदारी या फिर कबीलाई नाते फर्ज पूरा करने में कभी हायल नहीं हो सकते। जब सुना कि मुस्लिम मुख्तार का मेहमान बन गया है तो बिलादरेख उसे हाजिर करवाकर उस पर इत्तिमाम हुज्जत कर दी और उससे हर तरह ला ताल्लुकी का इजहार किया और खुल्लम खुल्ला मस्जिद कूफा के मिंबर पर उससे और यहाँ तक कि अपनी बेटी से बारात का ऐलान कर दिया। अगर इसरार है कि मुझे खलीफा का खयानतकार साबित करें तो कोई काबिल तवज्जो दलील ढूंढिए जो खलीफा की नजर में काबिल कबूल हो और मुझे का खेज ना हो। कहां जा रहे हो नौमान? हमारी गुजारिशात अभी खत्म नहीं हुई है। आप मुझ पर इल्जाम और तोहमत लगाना चाहते हैं, कोई डरने की बात नहीं। एक अदालत रखवाइए और काजी शुरह को बुलवाइए। खुदा के फजल से आपकी तोहमतों का जवाब दे दूंगा। किसी अदालत और काजी शुरह की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने फतवे पर कवानीन बनाता हूं। बिन रईस। जी अमीर। जब तक कल का हाकिम और आज का मुल्जिम अक्लमंदी का मुजाहरा ना करे वो हमारा कैदी है। उसे इस्तेमाल करके मुख्तार को किसी हिरन की तरह जाल में फंसाना होगा। इताअत हाकिम मुझ जैसे फौजी का काम है। ये वो सबक है जो खुदा आपने मुझे सिखाया है। मैं शर्मिंदा हूं जनाब नोमान। हुक्म अमीर से आप मेरे कैदी हैं। हुक्म तो आपका ही चलेगा। यह आपकी खाम ख्याली है कि इस चाल के जरिए से मुख्तार को शिकार कर सके। मेरा अंजाम मुख्तार के लिए एक मच्छर की कीमत भी नहीं रखता। ये वही था जिसकी वजह से मैं अमीरी के तख्त से नीचे आ गया। आप तवक्को करते हैं कि मुझे आजाद कराने के लिए उसका दिल जले और वो खुद को आपके हवाले कर दे? क्या ये हैफ नहीं था कि तुमने अपनी बेटी को उस जैसे नमक हराम के हवाले कर दिया? बेशक बुरे हालात इंसान के गुनाहों का बदला होते हैं जिनका वो मुर्तकिब हुआ है। मुझ जैसे शख्स की उम्र में ये बहुत दर्दनाक मरहला है कि अपने चुने हुए रास्ते पर मुतवज्जा हो जाना कि हाय ये रास्ता तो गलत था। जिस दिन मुख्तार से रिश्तेदारी के लिए मैंने हाँ कहा
उस दिन समझ रहा था कि आज से मैंने मुख्तार के खतरे को हमेशा के लिए दफन कर दिया और एक सरे सख्त मुखालिफ को मैंने एक मुतीउ फरमाबरदार बंदा बना दिया है। खतरा दफन होना तो दूर की बात है, उल्टा ये कि बेटी भी शौहर के हम अकीदा हो गई और बाप की मुखालिफ। मेरी आज की तकलीफें नादानियों का हासिल नहीं है। मैंने ना जानते हुए और बेफायदा कोई काम नहीं किया। पूरी उम्मीद और मेहनत के साथ अपने गलत यकीन के रास्ते पर चलते चलते ये सब किया है। मैं गुलो जंजीर के लिए तैयार हूं बिन हुरैस। नहीं बिन हुरैस, नहीं, हमें जवाब मिल गया। मुख्तार को फंसाने के लिए कोई कीमती बकरा ढूंढना पड़ेगा। तुम्हें रुखसत दी हमने नुमान, यहां से कहीं दूर मत चले जाना। तुम कूफा और कूफियों को हमसे ज्यादा जानते हो। तुम चाहो तो बहुत से राजों के लिए खजाने की चाबी बन जाओ। नोमान जनाब अमीर की करीमाना माफी का हकदार था। वो एक नर्म दिल इंसान है। क्या तुम कूफा के शुरतों के अमीर हो? था, आज के बाद से आपकी रकाब में एक फौजी हूँ। क्या ये मकाम तुम्हें नौमान ने दिया था? जी हाँ अमीर। तो फिर जब मैंने उसे कैद करने को कहा, तुम्हारे हाथ क्यों नहीं कांपे? वफादारी का तकाजा तो ये था बिन हुरैस कि तुम हमारा हुक्म ना मानते। हमारी तरबियत की गई है कि अपने से बड़े का हुक्म एक फर्ज है। नोमान तब तक मेरा बड़ा था जब वो अमीर कूफा था। बातें मत बनाओ बिन हुरैस, हमारे साथ सच्चे रहो। ये कहो कि अपने मकाम मनसब के हाथ से जाने से डर रहा था। हाँ, कुछ थोड़ी बहुत अपने मकाम की भी फिक्र थी मुझे। शाबाश, ये हमारे लिए काबिल कबूल जवाब था। जब तक हमारे पास और हमारे साथ हो, करीमाना मुआफी और बख्शिश से गुरेज करो, और नर्म दिली से भी। ये अल्फाज हमें फरेब नहीं देते। हुकूमत के लिए सबसे मौलिक तरीन आफत नर्म दिली है। नौमान का अंजाम देखा तुमने? नौमान बहुत खुश नसीब था कि उसका सरदार पर नहीं लटकाया गया। नर्म दिली से हुकूमत तो नहीं की जा सकती सरदार। एक हाकिम रिंद अपने जज्बात से सौदा करता है, माफी और बख्शिश से नहीं। बिल्कुल आपकी तरह कि आपने एक मुश्किल इम्तिहान में जज्बात का सर कलम कर दिया और सुरखरू हो गए। अच्छा सौदा किया तुमने, मुबारक हो तुम्हें। तुम अपनी जगह बरकरार हो गए बिन हुरैस। तमाम बामनसब बाअसर और कूफा के बुजुर्गान को आज रात खाने पर दावत दे दो, तमाम मुखालफीन समेत। जो हुक्म आपका। उम्र सादात से ना निकले। सुसर ना हुआ, बहनोई हो गया। तुम्हारे बहनोई के हाथों तुम्हारा गला घोंट दूंगा मुख्तार।